Today we will be discussing one of the most important topic of Python, that is Python database connectivity. What is the meaning of this Python database connectivity? Now, since we have discussed about file handling, that to store the data permanently, we have used files like text file, binary file or CSV file for storing the data permanently. And the next thing is that instead of files, you can use database. Instead of files, you can use database for storing your data permanently. We will understand what is the difference between storing the data in files and why we are choosing database. Fine. So first of all, let's understand. So suppose this is Python application. This is database. You have stored your data entirely in tables. Suppose students data, doctors data, patients data, whatever data it is, you have stored in various tables. And now you have created one Python application. This can be a GUI application. This can be a GUI application. Let me just write it here. This can be a GUI. That means graphical user interface. And this can be a CUI. Command line user interface, graphical user interface and CUI. So you can create your application in any way. It's up to you. Fine. So now what we want, we know that we have stored our data in files also. For that also we have used file handling. We have used open method and then connected with the file and lot of functions we have discussed. So similarly, it cannot directly connect with database because we know that database can be of different company. Like suppose if you are using MySQL, you can use MySQL, you can use Oracle, you can use Oracle, you can use Oracle or IBM DB2. Any database you can use, any database. So as you know that, suppose that if you have purchased a printer, if you have purchased a printer, let me give example of printer, then you will be able to understand more properly. Then I'll be coming back to this same example. Fine. Suppose that this is one printer. This is one printer. This is one printer which you have purchased. And this is your computer. This is your PC, personal computer. Now you have just purchased the printer of Canon company and this is your computer. What you have done, you have just plugged in, that means connected the printer with your PC via using USB cable. Connected the printer by using USB cable with your PC. But you cannot send print command to this printer. Why so? Because this printer requires one driver program. This printer requires one driver program so that personal computer can send commands to it. So here we need driver. Here we need driver program. Here we need driver program. Driver driver is basically a program which can establish a communication, between personal computer and printer. So that means it is like a channel. Driver is just like a channel by which PC will understand the printer and printer will understand the PC, and both can be communicating with each other. Similarly in Python, similarly in Python, the Python app wants to store data in the database tables, and it can retrieve, it can select, it can update, delete, create, search, any kind of operation we want to do with the database. So here also we need a connector program. We want to connect both. We want to connect both. So what we need? We will be requiring a connector program. So we need one connector program. We need Python MySQL connector, which is just like a driver program, which is just like a driver program, so that both can be easily communicating with each other. That means database MySQL can send the data to Python and Python can request for the data. So how can we use this? Now let's continue it. This is the one basic diagram of Python application versus database. We will go through with each and everything. Don't worry about it. This is the basic diagram. Fine.
So first of all, let's understand the importance of data. Let's understand the importance of data, and then we will be learning how can we do database connectivity in Python. So data is, you all know, data is very important. Data is very important for any organization to continue its operations. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना है तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो कि स्टॉक मार्केट है या कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी को अपने स्टॉक का डेटा रखना पड़ेगा कि मेरा पहले साल क्या डेटा था मेरे पास में, क्या मेरे पास फ्लक्चुएशन थी, कितने लोगों ने खरीदे थे, कौन कौन से कस्टमर्स आए थे, कौन कौन से गए थे, सो दैट दे कैन हैव ए फीडबैक एंड दे कैन जस्ट इंप्रूव दियर प्रोडक्ट। तो डेटा हर किसी के लिए, दैट मीन्स टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो डेटा होता है वो किस चीज के लिए होता है? द डेटा मे बी रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, अगर कोई एम्प्लॉइज मैनेजमेंट सिस्टम है। इट कैन बी रिलेटेड टू डॉक्टर्स, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ठीक है, स्कूल है तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉट मैनी अदर थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो विदाउट डेटा नो ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें डेटा का मेंटेनेंस रखना ही पड़ेगा। तभी वो निकाल पाएंगे कि हाँ मेरे पास में कितने स्टूडेंट्स आए थे, कितने स्टूडेंट्स की फीस पेंडिंग है, कितने स्टूडेंट्स ने ये 12th पास कर लिया, कितने स्टूडेंट ने 11th के अंदर एडमिशन लिया है, कितने स्टूडेंट ने ये वाला सब्जेक्ट लिया है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू कीप द डेटा। सो हेंस डेटा इज very important. Data is very important, and it should never be lost. कभी डेटा खोना नहीं चाहिए अपना, क्योंकि डेटा अगर चला गया अपने पास में, देन यू विल बी नोवेयर, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सपोज आपके मोबाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट थी और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपसे गलती से खो गई, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वंस माय कॉन्टैक्ट लिस्ट इज लॉस्ट, देन आई हैव टू अगेन आस्क फॉर द कॉन्टैक्ट लिस्ट। सपोज रिकवरी भी नहीं हो पा रही, एनीथिंग, बैकअप भी लॉस हो गया, एनी काइंड ऑफ थिंग वी आर नॉट एबल टू रिकवर, तो डेटा की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट के नंबर, वट एवर द नंबर्स यू आर हैविंग, यू हैव लॉस्ट इट। तो इसीलिए मुझे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, नॉट फॉर simple organization, for simple normal person also data is very important. Fine. So how can we store data? To store data we can use files or a database का मतलब टेबल्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, फाइल कैन स्टोर data in text, binary, CSV, देखा है अपन ने फॉर्मेट। ठीक है, वो अभी देखेंगे अपन what is the benefit, what is the drawback of using files, why should we use database over files. And similarly a database represents collection. database represents collection. Database represents collection of data, just like a file. Okay. We can store data into a database by using a software. फाइल्स के अंदर तो या तो प्रोग्राम से स्टोर करो या फिर एडिटर से, just like you by using a software called database management system. ठीक है, बट वी विल बी यूजिंग RDBMS, वी नो दैट, क्योंकि DBMS में कोई मेथड गिवन नहीं है कि अपने पास में
किस वे में अपन स्टोर करेंगे। दैट मीन्स अपने डीबीएमएस का क्या मतलब हुआ, डीबीएमएस इज इक्वल टू डेटाबेस प्लस सॉफ्टवेयर टू मैनेज द डेटा। ये मतलब होता है डेटाबेस का। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स अपने पास में कौन से हैं, माई एसक्यूएल, यू कैन यूज माई एसक्यूएल, IBM DB2, ऑल्दो दे यूज RDBMS सिस्टम ऑफ स्टोरिंग, सी बेस कंपनी का भी है, MS माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर and many others are there. We will be using MySQL, and it is RDBMS software. We know that MySQL is RDBMS software. Why so? Because it is storing the relational database, and relational database which keeps the data in the form of tables, which keeps the data in the form of table only. Okay. So now our main question is why we need why we need our main question should be this only, why we need a DBMS when we have files to handle the data, when we have files to handle the data। तो जब मेरे पास फाइल पड़ी हुई है तो मैं DBMS क्यों यूज करूं, मैं DBMS सिस्टम को क्यों यूज करूं, उसके अपने पास बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये जानना है कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर फाइल, कि मुझे क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, पहला, नाउ यू ऑल नो दैट अगर मुझे फाइल में कुछ स्टोर करना है, इफ आई वांट टू स्टोर समथिंग इन फाइल, अगर मुझे फाइल में कुछ स्टोर करना है तो मुझे एक लार्ज प्रोग्राम लिखना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम, डू रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन ओपन द टेक्स्ट एडिटर एंड वी कैन राइट द डेटा, वी कैन ओपन द वर्ड फाइल एंड एक्सेल फाइल, दैट यू कैन डू, but I am talking about via program how can we interact with the file. So to store data in a file, to store data in, first of all, table, we just need one simple command, one simple insert command, डायरेक्ट कमांड से हो जाएगा। बट टू स्टोर डेटा इन फाइल वी नीड टू राइट ए बिग प्रोग्राम। अब वो डिपेंड करता है क्या प्रोग्राम होगा, वी नीड टू राइट ए बिग प्रोग्राम, एटलीस्ट 5-6 लाइन तो अपने पास होंगी ही होंगी, बट यहाँ पर एक सिंगल कमांड के अंदर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा अपने पास में, suppose that if there are 2-3 files, if there are 2-3 files and you want to maintain a relationship, you want to maintain a link between the files, अगर मुझे 2-3 फाइलों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे अलग अलग। बट हेयर वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की, वो डिस्कस करेंगे अपन फॉरेन की भी, टू मेंटेन द रिलेशन, टू मेंटेन, और just instead of maintain, to create link between 2 or more files, we need to write separate programs. But in DBMS we can use foreign key concept that we will discuss. What is the meaning of foreign key? Foreign key concept, to create relationship, to create relationship between various tables, के बीच में रिलेशनशिप अपन कंटेन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है रिलेशनशिप का मतलब, सपोज दैट मेरे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर 2 फाइल हैं, एक अपने पास सपोज स्कूल, एक स्कूल और एक हॉस्टल है, एक स्कूल और एक हॉस्टल, स्कूल और हॉस्टल में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। सपोज दैट हॉस्टल में भी स्टूडेंट का एड्रेस है और स्कूल में भी स्टूडेंट का एड्रेस है। नाउ इफ आई हैव अपडेटेड द एड्रेस इन स्कूल फाइल, अभी बात कर रहा हूँ फाइल की, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा किसमें, स्टूडेंट वाली फाइल में। फॉर दैट आई हैव टू ओपन इट मैनुअली, मुझे वापस से ओपन करना पड़ेगा, अगेन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तब जाके वो कॉपी करेगा, एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव टू डू। बट हियर यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आपने पेरेंट टेबल में, दैट मीन्स स्कूल, here the relationship of parent and child will be created in case of DBMS,
एक बार आपने पेरेंट टेबल में अपडेट किया, ऑटोमेटिकली अपडेट कहाँ हो जाएगा, चाइल्ड टेबल में. दिस इज द benefit of using foreign key in DBMS that we will discuss. And next important thing, data redundancy. Data redundancy is there in file system, and no rules are imposed on data. डेटा रिडंडेंसी, मान लो फाइल ही है, ये मान लो एक फाइल है, मैं इसमें रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ ऐसे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर 1, फिर मैंने दोबारा 1 डाल दिया. अब ये आपको मैनुअली प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. इन फाइल यू हैव टू क्रिएट मैनुअल प्रोग्राम. वहां आपको देखना पड़ेगा कि कहीं रिकॉर्ड वैसे से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है. बट इन केस ऑफ दिस DBMS, यू नो दैट प्राइमरी की कंसेप्ट का यूज कर लूंगा, यूनिक की कंसेप्ट का यूज कर लूंगा, एंड इन फाइल यू कैन स्किप ऑल्सो. अब मैं चाहता हूँ स्किप ना करे तो मैं यहाँ नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर लूंगा, रूल्स को इम्पोज कर सकता हूँ. इन फाइल यू नो दैट रोल नंबर अगर इंटीजर है टेबल में तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगा, बट इन केस ऑफ फाइल यू कैन स्टोर एनीथिंग. यू कैन स्टोर योर नेम ऑल्सो इन रोल नंबर, इट विल नॉट डू एनीथिंग, कोई एरर नहीं आएगा. दैट इज द प्रॉब्लम विद फाइल कि डेटा रिडंडेंसी है फाइल सिस्टम में, नो रूल्स आर इम्पोज्ड ऑन डेटा, एंड डेटा can be inconsistent. Data can be inconsistent also. Fine. And next, file offers weak security. File offers weak security, whereas आपको अलग फाइल खुद से कोई भी सिक्योरिटी सप्लाई नहीं करती है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, उस पर लॉक लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज नो. फाइल ऑफर्स वीक सिक्योरिटी, whereas DBMS offers very good protection for डेटा. ठीक है, तो ऐसे अपने पास ये मेन एडवांटेज है DBMS की. तो मेन तो ये होगा कि यहाँ पर स्टोरिंग करने के लिए, एंड बाकी जितने भी ऑपरेशन है, डिलीट, हमने देखा डिलीट ऑपरेशन किया था, वेरी ह्यूज लाइन प्रोग्राम वी हैव रिटन, बट हियर सिंपल डिलीट कमांड विल वर्क. इफ यू वांट टू डू अपडेट इन फाइल, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, कॉपी करना पड़ेगा दूसरी फाइल में, देन डिलीट करना पड़ेगा, बट हियर सिंपल अपडेट कमांड विल वर्क. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग DBMS ओवर फाइल, दैट वी कैन यूज इट. ठीक है, तो बिग, अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो ऑफ कोर्स वी विल बी यूजिंग द DBMS इंस्टेड ऑफ यूजिंग, रादर देन यूजिंग दिस फाइल्स. तो फाइल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है अपने पास में, कम डेटा है तो अपन फाइल यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल बी यूजिंग दिस ओनली. फाइन. So now let us start with our main portion. Process of database connectivity. Process of database connectivity in Python. ठीक है, तो जैसा कि मैंने वो डायग्राम दिखाया था आपको, that we need a Python MySQL connector, यहाँ इसे पैकेज बोलते हैं. तो सबसे पहले मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. वही बात है, आपने प्रिंटर खरीद लिया, यू हैव जस्ट परचेज्ड प्रिंटर, पीसी होगा, साथ में ड्राइवर की सीडी आएगी, या फिर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट. ड्राइवर को इंस्टॉल करो, उसके बाद ही कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दिस प्रोसेस ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल MySQL connector package so that we can connect Python program with MySQL सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना होगा मुझे, क्या अपने पास कमांड है? फॉर दैट स्टेप्स आर, फर्स्ट वन, ओपन CMD. ठीक है, एंड देन टाइप, क्या टाइप करोगे, ये टाइप करना है अपन को, pip. This is some, there is no direct full form given, you can call it Python package installer, or preferred installer program, और Python package installer. इसके कमांड की हेल्प से एक्सटर्नल पैकेज
एक्सटर्नल पैकेज में इंस्टॉल करूंगा पिप, आफ्टर दैट राइट द वर्ड इंस्टॉल एंड देन हेयर mysql hyphen connector, pip install mysql hyphen connector and then enter. Let me show you. Let's open cmd. Fine, cmd is open. So just first of all, let's check pip is working or not. In some of the system you may see that pip command work नहीं कर रही होगी, कुछ सिस्टम में हो सकता है कि pip command ना वर्क करे. What is the reason of that? हो सकता है यहाँ पर ऐसा एरर आ जाए. देखो, let me write pip1. Some kind of this kind of error you may see. This kind of, let me just increase the font. Okay. So this kind, suppose मैंने pip1 लिखा, हो सकता है in some of the system you may see pip लिखने पर error आए. pip is not recognized as an internal or external command, operable program और batch file. ठीक है, बताऊंगा अभी कैसे करना है उसके इसके. पहले अपन इंस्टॉल करते हैं. pip install mysql hyphen connector. इंटरनेट से डाउनलोड होगा. It will be downloaded from internet only. So you have to connect your system with internet. Enter करा. Now see. Done. देखते हैं अपन कि इसमें इंस्टॉल क्या हुआ. पिप लिस्ट. लिस्ट का मतलब ये दिखाएगा आपको कि कौन कौन से पैकेज है, उनकी लिस्ट दिखा देगा. सी नाउ mysql hyphen connector इज इंस्टॉल्ड, वर्जन 2.2.9. ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया अपने पास में. तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी सिस्टम में आप पिप लिखो, मान लो मैं pip1 लिख रहा हूँ, सपोज इमेजिन pip1 इज पिप and you are getting this error that pip is not recognized as an internal or external command, operable program और batch file. तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, आपका पाथ सेट नहीं है. तो आपको पाथ सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या करना होगा आपको, स्टार्ट पे जाना, सी ड्राइव ओपन करना और सर्च बॉक्स में लिखना पिप. आपको ये दिखाएगा कि पिप की लोकेशन कहाँ पर है, पता चल जाएगा पिप की लोकेशन किधर है. PIP. जस्ट ए मिनट, इट इज सर्चिंग. स्क्रिप्ट्स फोल्डर में होती है. स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होगा पाइथन के इंस्टॉलर लोकेशन पे. और इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन सिंपली राइट इट इज टेकिंग सो मच टाइम बिकॉज ओके फाइन आ गया. देखो पिप, ये देखो पिप लिखा हुआ है PIP. नाउ वेयर इट इज स्टोर्ड यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि अपने पास में ये किधर है कमांड. ठीक है, ये कमांड अपने पास में किधर है. ओपन फाइल लोकेशन, जस्ट सी हियर. ये जो फोल्डर है स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में है. स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में, स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में है. इस बात को कॉपी करना होगा आपको आपके सिस्टम में. तो मेरे सिस्टम में कहाँ पर है ये, मेरे सिस्टम में Python x86 I have installed it here. Scripts नाम का फोल्डर एंड पिप. दिस इज द पाथ. तो इस पाथ को कॉपी करोगे, हेयर कॉपी कर लिया, लिखोगे पाथ इक्वल्स टू एंड कॉपी इट एंड देन दैट्स इट. अब इंस्टॉल करोगे, अब आप लिखोगे तो डू रिमेंबर यू हैव टू फाइंड फर्स्ट दिस पर्टिकुलर पिप आपके सिस्टम में कहाँ पर है. जहाँ पर भी हो उसे कॉपी कर लेना, पाथ इक्वल्स टू लिखना एंड देन पिप इंस्टॉल mysql hyphen connector. ठीक है, दिस इज इंस्टॉल्ड. लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज इंस्टॉल्ड और नॉट. चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखो import mysql डॉट आएगा डॉट कनेक्टर, थोड़ा सा डिफरेंस है कनेक्टर. ठीक है, एरर नहीं आया. अदरवाइज क्या होता है, एरर आता. आप पहले ट्राई करना विदाउट इंस्टॉलेशन, यू विल सी एरर दैट दिस इज, सपोज लेट मी राइट import SCI SciPy. दिस इज साइंटिफिक पाइथन पैकेज. एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड SciPy. ऐसा मॉड्यूल आपने इंस्टॉल नहीं करा, आपने ऐसा मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करा साइंटिफिक पाइथन नाम का. तो यू मे गेट सच एरर बिकॉज इंस्टॉल नहीं हुआ. यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया, बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड इट. मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया. ठीक है, तो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, दैट मीन्स मैं इंपोर्ट उसे कर सकता हूँ, मैं उसे इंपोर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, नाउ अब अपना मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है. डेटाबेस कनेक्टिविटी में बस स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है. फ्यू वेरी इजी स्टेप्स.
for creating database connectivity applications. For creating database connectivity applications. ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन का मतलब क्या है? आप डेटाबेस क्रिएट करवाओगे पाइथन के प्रोग्राम से, टेबल्स क्रिएट करवाओगे, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सर्च करवाना, रिट्राइव करवाना, ऑल सच थिंग्स आर डन बाय, और ऑल्टर कमांड एग्जीक्यूट करना, वो सारी की सारी अपन इस पर्टिकुलर से करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट द पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर, create a new open create a new file, new python file। ठीक, कर लेंगे। इंस्टॉल तो अपन ने पहले ही कर लिया, वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अदरवाइज यू शुड इंस्टॉल इट फर्स्ट, दिस शुड बी सेकंड स्टेप, दिस शुड बी सेकंड स्टेप। हाँ सॉरी, यहाँ मैंने इसको मैं नीचे कर देता हूँ, पहले मुझे इंस्टॉल तो करना ही करना है। इंस्टॉल द MySQL हाइफन कनेक्टर पैकेज, दिस इज लाइक ए ड्राइवर प्रोग्राम, दिस इज लाइक ए ड्राइवर प्रोग्राम। स्टार्ट द पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर, क्रिएट ए न्यू पाइथन फाइल। ठीक है, सबसे पहला पहला काम क्या होगा? देखो इस ड्राइवर पैकेज में है क्या? दिस MySQL कनेक्टर, दिस मॉड्यूल, इट कंटेन्स लॉट ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। बाय यूजिंग दोज फंक्शंस, बाय यूजिंग दोज फंक्शन आई विल बी इंटरेक्टिंग, मैं क्या करूंगा? उनकी हेल्प से इंटरेक्ट करूँ। जैसे ओपन फंक्शन था फाइल हैंडलिंग में, फाइल ओपन करने का काम आया था, याद होगा आपको, ओपन फंक्शन से फाइल ओपन करी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? कनेक्ट नाम का फंक्शन होगा, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे कनेक्ट करना है। देखो होता क्या है, सपोज मान लो यही चीज है, इसमें इसको मैंने हटा दिया, और आपने क्या करा? ड्राइवर आपने इंस्टॉल तो कर लिया, वो आपने पिप कमांड से इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? कनेक्शन बनाना होगा, कनेक्शन। पाइथन की एप्लीकेशन से आई हैव टू मेक कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे वहां पर था ओपन फंक्शन, यहाँ पर क्या है? कनेक्ट फंक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि कनेक्ट करना पड़ता है डेटाबेस से, ऑटोमेटिकली खुलता नहीं है, इट रिक्वायर्स पासवर्ड। यूजर नेम होगा, यूजर नेम होगा अपने पास में, फिर होस्ट होगा अपने पास, कहाँ रन कर रहा है वो, आपके सिस्टम पे है या फिर किसी दूसरे सिस्टम पे, रिमोट सिस्टम पे है। देन यू हैव टू राइट आईपी एड्रेस, फिर कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ दैट डेटाबेस, व्हाट इज द यूजर नेम ऑफ दैट डेटाबेस, दैट यू हैव टू टाइप। आफ्टर दैट कनेक्शन अपना बनेगा। ठीक है, सो स्टार्ट द पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर नाउ, ओपन a connection, open a connection to database by using, one by one we'll study everything. I'm just writing step, by using connect function of MySQL connector module। ये जो आपका MySQL connector module है, इसके अंदर एक connect नाम का फंक्शन है, जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप, कनेक्ट होने के बाद में, कनेक्ट का मतलब एक लॉजिकल, आपके बीच में एक तार आ गई बीच में, कनेक्शन बन गया। बट कनेक्शन बनने का मतलब ये नहीं है कि डेटा का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्शन, आपने सिर्फ कनेक्शन बनाया है कि हाँ नाउ यू कैन जस्ट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, यू कैन जस्ट एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन, कनेक्शन सिर्फ बन गया अपने पास में, दैट मीन्स वो अब समझ सकता है MySQL डेटाबेस हैज गिवन यू राइट्स दैट आप मेरे पास में डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डेटा की रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? मुझे क्वेरी सेंड करनी होगी। नाउ आई वांट टू सेंड द क्वेरी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? टू सेंड द क्वेरीज to database, to send the queries to database, that is MySQL database, we need to create a cursor object। बताऊंगा अभी cursor object का मतलब क्या है। we need to create a cursor object over the created connection। अब देखो ये cursor object क्या है? ये cursor object अपने पास में क्या चीज है? कनेक्शन बना दिया आपने, कनेक्शन बनाने के बाद में
कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में राइट्स होते हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग कर्सर फंक्शन, कर्सर नाम का फंक्शन है, बाय यूजिंग कर्सर फंक्शन, ठीक है। तो क्या करता है कर्सर फंक्शन? कर्सर फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, इसके दो काम है, इसके अपने पास दो काम है। लेट मी राइट इट। ये अपने पास डेटाबेस था, ठीक है। ये पाइथन का प्रोग्राम है। मैंने क्या करा, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, कनेक्शन बन गया। दिस इज माय एप्लीकेशन एंड दिस इज माय एसक्यूएल डेटाबेस। फाइन, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद में मुझे पता है मुझे क्वेरीज सेंड करनी होंगी, क्वेरीज सेंड करनी होंगी MySQL के पास में, प्लस MySQL भी आपको रिजल्ट भेजेगा। रिजल्ट जैसे सिलेक्ट कमांड अगर एग्जीक्यूट करते हो, इफ यू विल एग्जीक्यूट सिलेक्ट कमांड इट विल सेंड यू रिकॉर्ड्स, देन हु विल स्टोर? ये कनेक्शन जो बनाया आपने, ये तार तो स्टोर नहीं कर सकती। दिस इज लाइक ए वायर। कनेक्शन का मतलब क्या है? सिर्फ एक वायर है, कनेक्शन एक वायर है। ये वायर सिर्फ एस्टेब्लिश कनेक्शन किया, इसके थ्रू अपने पास जाएगा, लेकिन इसके पास स्टोर करने के राइट्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ से रिकॉर्ड आए वापस, यहाँ से वापस रिकॉर्ड्स आ गए, तो हु विल स्टोर? कर्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, कर्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? सारे रिकॉर्ड्स आपके स्टोर कर सकता है। दो काम करता है वो, क्वेरीज को एग्जीक्यूट, क्वेरीज को भेजना, क्वेरीज को भेजना वो कर्सर का काम है। और वापस से जो रिकॉर्ड्स आए, रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स विच यू विल बी सेंडिंग, रिकॉर्ड्स जो मेरे पास में आएंगे, वो भी अपने पास किसका काम है? इस कर्सर का। वो रिकॉर्ड्स भी स्टोर करेगा। तो कर्सर क्या करता है? पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, एक एक करके आप इस कर्सर से रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। दो काम हो गए। पहला काम क्या था? कनेक्शन बनाया, एक वायर मैंने डाल दी दोनों के बीच में। आफ्टर दैट, बाय यूजिंग दैट वायर, बाय यूजिंग दैट वायर, देखो इसका मतलब कुछ ऐसा सही है। आप इमेजिन करो कि एक वायर है, लेकिन वायर के अंदर कॉपर की कॉइल नहीं है अपने पास में, खाली एक प्लास्टिक कवरिंग है। कनेक्शन का मतलब खाली कवरिंग, ये समझो आप। कनेक्शन का मतलब क्या है? खाली कवरिंग है, कवरिंग आपने लगाई दोनों के बीच में। अब कर्सर का मतलब क्या है? दोनों के बीच में एक वायर डालना। ये वायर आ गई, ये वायर चली गई इस कनेक्शन के साथ में, ठीक है। तो इस वायर की हेल्प से, कर्सर का मतलब क्या हो गया? एक वायर। प्लास्टिक कनेक्शन का मतलब क्या था? वायर का आउटर कवर, खाली कवर। और कर्सर क्या करेगा? इसके अंदर एक कॉपर की वायर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब इस वायर के थ्रू मैं क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराऊंगा, यहाँ क्वेरीज जाएंगी, और वो क्या करेगा? अगर रिकॉर्ड्स होंगे तो इसी वायर के अंदर स्टोर कर देगा। ये वायर क्या है? एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से आप डेटा अपना रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। सो to send the queries to MySQL database, we need to create a cursor object over the created connection by using cursor function, ठीक है। ये हो गया, कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करूंगा? फॉर्म द रिक्वायर्ड क्वेरी। कौन सी क्वेरी है आपकी? सिलेक्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, और यू में से इंसर्ट, जो भी अपने पास कमांड है, कौन सी कमांड आपको रन करनी है वो क्वेरी आप फॉर्म कर लो, ठीक है। छठा, एग्जीक्यूट द क्वेरी बाय यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन। देखो सिंप्लिसिटी, बाय यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन वाया कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करोगे एंड पास द क्वेरी एज आर्ग्यूमेंट, पास द query as, I'm just writing step, we will understand each and every function, syntax का भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करा। अब मुझे पता है एग्जीक्यूट करने के बाद में अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, इंसर्ट कमांड तो रिजल्ट प्रोड्यूस करती नहीं है, बट सिलेक्ट कमांड विल प्रोड्यूस द रिजल्ट, सिलेक्ट कमांड विल प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑल्सो। तो एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट obtained if select command is executed, अगर select command execute हुई है तो, ठीक है। एंड एट लास्ट क्लोज कर्सर, क्लोज करना होगा, जैसे याद होगा फाइल को हमने क्लोज किया था। क्लोज द कर्सर एज वेल एज कनेक्शन, दोनों को मुझे
क्लोज करना है। ठीक है, कर्सर क्लोज करना मतलब वो वायर निकाल देना, और कनेक्शन का मतलब उस पाइप को भी रिमूव कर देना, उस पाइप को भी मुझे रिमूव करना होगा। ठीक है, सो नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्टेप से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चीज अपन डाल लेते हैं कि इंपोर्ट कैसे करेंगे। आप ये लाइन लिखोगे, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, पूरा नाम, या फिर वी नो दैट वी कैन गिव ए निक नेम ऑल्सो। जैसे दिया था बड़ा नाम है, क्योंकि फंक्शन यूज करने के लिए मुझे फिर इस पूरे नाम को एज एम ले लिया। तो नाउ आई कैन यूज एम एज द निक नेम फॉर एक्सेसिंग द फंक्शंस विच आर स्टोर्ड इन mysql डॉट कनेक्टर मॉड्यूल। जो अपने पास कनेक्शन स्टोर है, जो भी अपने पास फंक्शन स्टोर है, वो इसके हेल्प से मैं एक्सेस कर लूंगा। फाइन, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अपन ए कनेक्शन बाय यूजिंग कनेक्ट मेथड, बाय यूजिंग कनेक्ट मेथड। ठीक है, कैसे? अब देखो सिंटेक्स क्या है, कनेक्ट मेथड का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स कनेक्ट, इसके 4 आर्ग्यूमेंट है। होस्ट, यहाँ पर आएगा होस्ट नेम, क्योंकि अपना डेटाबेस अपने ही सिस्टम में स्टोर है तो लोकल होस्ट लिखेंगे, बताऊंगा अभी। होस्ट नेम, फिर यूजर, यूजर नेम, ये यूजर नेम है डेटाबेस का जो कि रूट होता है। रूट इज द डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ डेटाबेस। पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है डेटाबेस का, कॉमा डेटाबेस नेम ऑफ डेटाबेस, कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, बाय विच डेटाबेस यू वांट टू कनेक्ट। लेट मी राइट इट, लेट मी राइट इट फॉर यू हियर। होस्ट इज द database server host name. We can write the word localhost. Just write the word localhost if database is stored in same machine. उसी मशीन में, लोकल होस्ट का मतलब लोकल मशीन में, आपकी ही मशीन में। इफ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन सेम मशीन, अदरवाइज, अदरवाइज IP address, this is of not use for us, otherwise IP address will be used in case of, in case of रिमोट डेटाबेस, किसी और कंप्यूटर पे डेटाबेस स्टोर है। जैसे मान लो फेसबुक की एप्लीकेशन है, नेटवर्क बनानी है एप्लीकेशन, तो आएगा किसका होस्ट नेम, उस सिस्टम का होस्ट नेम आएगा जिस सिस्टम पे अपने पास में डेटाबेस स्टोर करा हुआ है। ठीक है, तो बट इन आर केस वी विल बी यूजिंग लोकल होस्ट ओनली। ठीक है, तो होस्ट इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, लोकल होस्ट। ठीक है, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट ये लिखेंगे। सेकेंड, तो पहला आर्ग्यूमेंट इसमें होस्ट था, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है, बी, यूजर इज द यूजर नेम ऑफ MySQL डेटाबेस। ये आपको याद रखना है, विच इज रूट, विच इज रूट, रूट नाम है उसका। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या लिखोगे आप, यूजर इक्वल्स टू रूट। ठीक है, सी, पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ MySQL डेटाबेस। हम क्या लिखेंगे, अपने सिस्टम का पासवर्ड 123 है, मेरे सिस्टम का। इफ यू हैव अदर पासवर्ड देन यू हैव टू राइट दैट पासवर्ड। ठीक है, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस, पासवर्ड अगर PASSWD ये भी काम करता है, इक्वल्स टू 123, दोनों काम करते हैं, फुल फॉर्म भी, और यू कैन राइट पास WD, और लास्ट में D, डेटाबेस इज द, यू कैन सी दैट दिस इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ही हैं। ध्यान होगा आपको फंक्शन के टाइम पर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर का नाम लिखते हैं फिर वैल्यू पास करते हैं। डेटाबेस इज द नेम ऑफ डेटाबेस विद विच यू वांट टू कनेक्ट, विद विच यू वांट टू कनेक्ट, तुम्हें किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है।
सपोज मैंने लिखा डेटाबेस इक्वल टू CBSE, दैट मीन्स आई विल बी कनेक्टिंग विद CBSE डेटाबेस। इस डेटाबेस में मेरी टेबल्स स्टोर हो रखी हैं, ठीक है, इस डेटाबेस में मेरी टेबल स्टोर हुई हैं। एंड नोट, कनेक्ट फंक्शन विल रिटर्न, आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, कनेक्ट फंक्शन विल रिटर्न द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी वो वायर, फिजिकल वायर आपको दे दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास सारे राइट्स आ गए कि हाँ इस ऑब्जेक्ट की आप सारे हेल्प। इट्स लाइक ए हैंडल, इट्स लाइक जैसे है ना रिमोट कंट्रोलर था फाइल हैंडलिंग के अंदर, ऐसा ही अपने पास ये रिमोट कंट्रोलर है उस पर्टिकुलर डेटाबेस का, बाय यूजिंग विच वी कैन एक्सेस दैट। ठीक है, तो कंप्लीट सिंटेक्स क्या हुआ, लेट मी राइट इट। सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग, कॉल कैसे करोगे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अब या तो आप ये लिखोगे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, पहले पैकेज नेम आता है, फिर डॉट कनेक्ट, पहले पैकेज नेम आता है, देन डॉट फंक्शन का नेम, एंड देन पास्ट एवरीथिंग। सपोज मैंने क्या लिखा, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, यही लिखेंगे अपन। यूजर इक्वल्स टू रूट, ये फिक्स्ड है, सबका यही होगा। वन मोर थिंग, डेटाबेस यू कैन राइट DB ऑल्सो, और DB ये भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म। पासवर्ड, मेरा पासवर्ड 123 है, कॉमा डेटाबेस। नाउ अगर तुम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो तो ब्लैंक आएगा, इफ यू आर क्रिएटिंग ए डेटाबेस देन ब्लैंक, अदरवाइज यू टू राइट द डेटाबेस नेम। ठीक है, ये हुआ। और मेरे वाले केस में मैंने M नाम लिखा था, आई हैव रिटन द M नेम, मैंने शॉर्ट नेम लिखा था M, याद होगा देखो, ये M नाम लिखा था मैंने, तो यू हैव रिटन द शॉर्ट नेम, देन यू कैन सिंपली यूज M डॉट कनेक्ट, दिस इज द इजीनेस ऑफ दिस M डॉट कनेक्ट। मॉड्यूल का नेम तो पहला काम अपन ने कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद में आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करा, सब कुछ इंफॉर्मेशन पास कर दी, एंड दिस फंक्शन विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट विच इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू आपको बाकी के सारे काम करने होंगे, इसके थ्रू आपको बाकी के सारे काम करने होंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट इट, इतना काम देखते हैं करके। अब हमें यह भी देखना है कि कनेक्शन बन गया नहीं बन गया। सपोज यू आर राइटिंग रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग डेटाबेस, तो कनेक्शन बना है या नहीं बना पता कैसे चलेगा। ओके, तो लेट्स सेव इट फर्स्ट, मैंने इसे सेव करा। सपोज प्रोग्राम 1, लेट्स जस्ट राइट import mysql डॉट कनेक्टर एज M। बेसिक एक नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं कि कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट अपन कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी राइट ऑब्जेक्ट नेम C ले लेता हूं मैं, C फॉर कनेक्शन, M डॉट कनेक्ट, M डॉट कनेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, कॉमा यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल्स टू 123 था पासवर्ड, एंड देन डेटाबेस इक्वल्स टू सपोज CBSE, डेटाबेस इक्वल्स टू CBSE। अब मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मैं सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया, क्या मैं सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया डेटाबेस से या नहीं हुआ। आई वांट टू चेक वेदर आई हैव कनेक्टेड विद सक्सेसफुली डेटाबेस और नॉट। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका नाम है इज कनेक्टेड। आई वांट टू चेक इज कनेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एग्जीक्यूट इट, इसे रन करते हैं अपन। अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा, let me write wrong database name, suppose CBSE 123, let's check whether CBSE 123 is there or not. 123 show databases, there is no such database CBSE 123. Let's try to connect with CBSE 12, let's run it, देखो एरर आया, unknown database CBSE 12, unknown database CBSE 12, mysql connector dot errors dot programming error। इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे करना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना होगा क्योंकि मेरे पास एरर्स आ सकते हैं। आप वो चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसके अपने पास में डेटाबेस है ही नहीं, ठीक है। डेटाबेस रॉन्ग की जगह लेट मी राइट रॉन्ग पासवर्ड 1234, लेट्स रन इट अगेन, देखो यूजिंग पासवर्ड एक्सेस डिनाइड आ गया, एक्सेस डिनाइड बिकॉज यू आर एंटरिंग रॉन्ग पासवर्ड, फाइन 123, रूट की जगह रूट 1 लिख दिया, ठीक है। लेट्स रन इट,
देखो एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट 1, ऐसा कोई यूजर ही नहीं है। अगर आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक करी, बीच में स्पेस डाल दिया, देखो लेट्स राइट ए स्पेस इन बिटवीन देम, गलत है। कैन नॉट कनेक्ट, इंटरफेस एरर। तो याद रखना हल्की सी मिस्टेक आपको एरर दिलवाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट मी जस्ट राइट CBSE ओनली, लेट्स रन इट। लेकिन देखो जब एरर आ रहा था तो पता चल रहा था, लेकिन एरर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो हाउ कैन वी सी दिस, हाउ कैन वी सी वेदर वी आर कनेक्टेड विद डेटाबेस और नॉट? तो उसके लिए एक फंक्शन पढ़ते हैं, इज कनेक्टेड। हाउ कैन वी चेक, हाउ कैन वी चेक whether we are connected with database or not? सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए? तो उसके लिए क्या है, तो वी विल यूज is underscore connected, is underscore connected method on connection object. It returns true if connection is established, it returns false if connection is not established. It returns true if connection is established, otherwise false, otherwise false, ठीक है। तो क्या इसका सिंटैक्स हो गया, वेरी सिंपल, इफ एल्स में कॉल कर लेंगे अपन, इफ सपोज सी डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, my case, in my case I have written the name C connected, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कर देंगे, सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई दिस आल्सो, इफ C डॉट इज अंडरस्कोर connected, then we will give a message print successfully connected. Okay, let's just save it and run it. Here we go. Yes, successfully connected. That means now you can proceed. Successfully connected. अब एक चीज और देखो, सपोज मान लो मैंने C डॉट क्लोज कर दिया, सपोज लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, C डॉट क्लोज। अब वापस देखो क्या कनेक्टेड है अभी भी, एक इसमें एल्स और डाल दो, एक इसमें एल्स और डाल दो, कनेक्शन क्लोज्ड, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। सी नाउ, आई होप इट इज अंडरस्टूड। क्लोज फंक्शन यहाँ पर भी वैसा ही है जो फाइल में था, पहले मैंने चेक करा डेटाबेस कनेक्शन बनाया, एंड नाउ आई एम चेकिंग इट इज कनेक्टेड और नॉट। सपोज गलती से आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, बिकॉज इन ए बिग प्रोजेक्ट यू विल नॉट बी नोइंग, बड़े प्रोजेक्ट में आपको पता नहीं चलता कि अगर मैंने गलती से कनेक्शन क्लोज कर दिया है, क्लोज्ड कनेक्शन पर अगर वो आपने पाइप ही हटा दिया, वो आपने पाइप ही रिमूव कर दिया, तो आप डेटाबेस से कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग यू कैन सी दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फॉल्स, कनेक्शन क्लोज्ड। पहले सक्सेसफुली कनेक्टेड था, फिर मैंने कनेक्शन को क्लोज करके दिखाया, एंड देन अगेन आई हैव रिटर्न दिस सक्सेसफुली कनेक्टेड, कनेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग डेटाबेस डालते हो तो दिखाएगा वो। अब देखो क्या होगा, अब तो यही एरर आ जाएगा, अब तो एरर फर्स्ट लाइन में देखो, जस्ट ए मिनट, CBSE 1 तो था ऑलरेडी, CBSE 1 2 10 सी, देखो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, एंड वी नो दैट अगर फर्स्ट लाइन में ये एरर है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं अपने पास, आगे वो जाएगा ही नहीं इंटरप्रेटर। फर्स्ट इस लाइन के एरर रिमूव करो, तो फॉर दिस वी हैव टू डू ट्राई एंड कैच, सॉरी ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई और कैच जावा में होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट वी हैव टू यूज इट, फाइन। तो दिस यू हैव टू ट्राई टुडे, ओनली दिस मच यू हैव टू ट्राई, इंपोर्ट करना, इंस्टॉल करना, कनेक्ट करना और ये वाला कोड ट्राई करना, एंड देन टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट, सारी कमांड अपन डिस्कस करेंगे, फाइन।